A very warm morning to one and all present here. This is Abhilashana Atta from Leal Public School, and today we all are going to start our new chapter from your history textbook. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures. So, first of all, what is the meaning of culture? So, culture uh, it refers to the customs and beliefs, the art, the way of life, social organization of a particular organization, particular country, particular group, region. All these are known as culture, and that's why we include language and literature in culture, distinctive types, different types of foods, clothes, poetry, dance, music, paintings of that particular area. So all those come under so the culture includes all these things under it, and of a particular region. Dance, food, cloth of a particular region is known as culture. Okay, so one of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak. When they refer to a person as a Tamil or an Uriya, this usually means that he or she speaks Tamil or Uriya and lives in Tamil Nadu or Odisha. So, whenever we describe people, whenever we identify people, normally we identify people through the language they speak. So, if somebody is speaking Tamil, we we easily get to know that particular person is from Tamil Nadu. If somebody is speaking Bengali or somebody is speaking Marathi, we normally knows like who that particular person is from that particular area. So even we also tend to associate each region with distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music, and painting. So even the culture of a particular region includes different types of foods, the way they attire themselves, the way the poetry of that particular region, the dance of that particular region, the music, the painting, etc. For example, in Rajasthan, we have like Ghumar. Okay, so from if somebody is doing Ghumar or is very much fond of Ghumar, then we normally found that person like from Rajasthan. Okay, so sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. So sometimes what we think कि बहुत मतलब हमेशा से जो है यही सारी चीजें चलती होगी, इनकी आइडेंटिटी यही है. However, the frontiers separating regions have evolved over time. So, but ये जो regions है टाइम टू टाइम इवॉल्व हुए. इवॉल्व का मतलब क्या होता है? इवॉल्व मीन्स चेंज हुए. टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस हुए हैं और इवन अभी तक जो है चेंजेस आ रहे हैं. Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processing of intermixing of local tradition with ideas from other parts of the subcontinent. So normally we understand regional culture. Today we understand regional culture as कि हम कुछ जैसे कि आज in Rajasthan also we eat idli dosa, or we we eat like सरसों का साग और मक्के की रोटी. तो इट्स लाइक इंटरमिक्सिंग करना. ठीक है, हम इंटरमिक्स कर रहे हैं लोकल ट्रेडिशंस को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज से, डिफरेंट जो हमारा जो प्लेसेस हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, उनसे इंटरमिक्स कर लेते हैं. सो एज वी विल सी, सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. So कुछ जो ट्रेडिशंस होते हैं आपकी, कुछ जो परंपराएं होती है, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन्स की ही होती है. कुछ जैसे अब हम राजस्थान में मकर संक्रांति बनाते हैं, वही अब साउथ में क्या है, ओणम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, एक ही पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, या फिर एक पर्टिकुलर जो आपका कस्टम है,
एक पार्ट में हम उसको एज कुछ और तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरे पार्ट में कुछ और तरीके से सेलिब्रेट करते हैं. सो ये प्रैक्टिसेस होती है कुछ पर्टिकुलर एरियाज की, बट टाइम टू टाइम वो क्या हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. सो the Cheras and the development of Malayalam. Basically, we will talk about language and literature, how language and literature evolved during the time. Okay, so let us begin by looking at the example of the connection between language and the region. So, what is the specific connection? What is a specific interlink between the language and region? एक language और एक region का क्या कनेक्शन हो सकता है, उसका एक एग्जांपल देखते हैं. The Chera kingdom of Mahodyapuram was established in 9th century in the southwestern part of the peninsula. Okay, so sorry. Yes, so the Chera kingdom of Mahodyapuram, जो Chera kingdom है, जो प्रेजेंट डे केरला में, प्रेजेंट डे केरला में केरला जो है वहां पे एक चेरा किंगडम था और वहां का जो किंगडम है उसका नाम था महोदयपुरम. वो 9th सेंचुरी में स्टैब्लिश हुआ था और इट इज लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया. द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस. और यहाँ पे जो लोग लैंग्वेज बोलते थे वो मलयालम लैंग्वेज बोलते थे. ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो मलयालम लैंग्वेज बोलते थे. एंड दिस लैंग्वेज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय this language was influenced by even Tamils also. ठीक है, तमिल से भी काफी इन्फ्लुएंस हुई है. और मलयालम, वहां के जो राजा वगैरह हैं, जो रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, मलयालम लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया. एंड आफ्टर दैट उसकी स्क्रिप्ट जो है, जो लिखने की लिपि होती है, उसको बोलते हैं, जो लिखाई होती है, उसको अपने इंस्क्रिप्शंस में, अपने इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, जब आप पत्थरों में, रॉक्स में या मेटल्स में जब लिखते हैं उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. तो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में क्या कर दिया, मलयालम को इंट्रोड्यूस कर दिया, लिख दिया. इन फैक्ट this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official record in the subcontinent. and ये एक बहुत ही earliest example है. you can take, in fact मतलब एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, नॉट पुराना मतलब अर्लीस्ट एग्जाम्पल है कोई भी रीजनल लैंग्वेज का जो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में हमारे पास जो है अवेलेबल है. So now just look at this figure. An early Kerala inscription composed in Malayalam. This is Malayalam language and this is an early Kerala inscription. Inscription जब rocks में या फिर आप metals में कोई language कुछ भी लिखते हो तो that is inscription ना. तो ये केरला की एक फिगर है जो अर्ली मलयालम इंस्क्रिप्शन है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है. So at the same time, Cheras also drew upon Sanskritic traditions. The temple theatre of Kerala, which is traced to this period, borrowed stories from the Sanskrit epics. The first literary works in Malayalam, dated to about the 12th century, are directly indebted to Sanskrit. Interestingly enough, a 14th century text, Lilatilakam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravallam, literally means diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and regional language. Now if we talk about the literature of this period, जो चेरास हैं उन्होंने काफी सांस्कृतिक ट्रेडिशंस को भी क्या किया है, उनको वो लेकर आए हैं, लोगों के सामने वो लेकर आए थे. सो जो ये जो पीरियड था 9th सेंचुरी वाला पीरियड, स्पेशली जो ये मेडिवल पीरियड था, इस टाइम पे केरला में बहुत सारी स्टोरीज जो है केरला, जो मलयालम, ये केरला में वो कहाँ से बोरो की गई थी, कहाँ से ली गई थी, संस्कृत एपिक्स से, जो मतलब ग्रंथ थे, संस्कृत के ग्रंथ थे, वहां से ली गई थी. और जो लिटरेरी वर्क्स है, मतलब फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम, 12th सेंचुरी में पहला जो है लिटरेरी वर्क मलयालम में जो है लिखा गया था और उसको संस्कृत में भी उसको ट्रांसलेट किया गया था. And interestingly enough, a 14th century text,
अब 14th सेंचुरी में एक टेक्स्ट लिखा गया है जिसका नाम है लीलाती लकम। उसमें ग्रामर और पॉलिटिक्स की बात की गई है, जिसमें मणिप्रवलम, ठीक है, वाज कंपोज्ड इन मणिप्रवलम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मणिप्रवलम? इट मींस डायमंड्स एंड कोरल्स के लिए वर्ड यूज किया गया है मणिप्रवलम, ठीक है। 14th सेंचुरी की है। मणिप्रवलम का मतलब होता है डायमंड्स एंड कोरल्स, और मणिप्रवलम एक लैंग्वेज का नाम है, और इस लैंग्वेज में लीलाती लकम को लिखा गया है। लीलाती लकम एक टेक्स्ट का नाम है, ठीक है। और मणिप्रवलम में 2 लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। इट रिफर्स टू द 2 लैंग्वेजेस, संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑफ केरला। जो केरला की रीजनल लैंग्वेज और संस्कृत है, उन दोनों को मिला के जो ये लीलाती लकम लिखी गई है, लीलाती लकम जो किताब लिखी गई है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? मणिप्रवलम में। और मणिप्रवलम संस्कृत और केरला की रीजनल लैंग्वेज को मिला के लिखी गई है। सो you can say it is a literary work that consists of words from Sanskrit and Malayalam, ठीक है। जो लीलाती लकम था, इसमें संस्कृत और मलयालम टेक्स्ट का यूज किया गया है, ठीक है। सो class, just look at this, rulers and religious traditions, the Jagannath cult. Now अब हम rulers की बात करते हैं। In other regions, regional cultures grew around religious traditions. अब हमने लैंग्वेज और लिटरेचर की बात कर ली कि कैसे जो मलयालम लैंग्वेज जो है वो इवॉल्व हुई, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आई, उसके बाद कैसे संस्कृत और मलयालम को मिला के जो है एक लैंग्वेज बनी, मणिप्रवलम लैंग्वेज बनी थी, ठीक है। अब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं, जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, जो परंपराएं हैं, उनकी बात करते हैं। So what is rulers and religious traditions, the Jagannath cult? So first of all, what is the meaning of cult? Cult मतलब होता है जो inhabitant, जो local inhabitants होते हैं, जो एक system होता है, local inhabitants जिस deity को मानते हैं, जिस परंपराओं को मानते हैं, एक जिस system को मानते हैं religion के, उसको हम बोलते हैं cult बोलते हैं, ठीक है। So in other regions, regional cultures grew around religious traditions. The best example of this process is the cult of Jagannath. It means Lord of the world, a name for Vishnu. Jagannath is a word which is used for Vishnu. विष्णु जी के लिए, Lord विष्णु के लिए जो है यूज किया जाता है, और जगन्नाथ का मतलब होता है Lord of the world, संसार के जो संसार के जो भगवान है, संसार के जो पूरे विश्व के जो भगवान हैं, उनके लिए यूज किया गया है। So Jagannath at Puri, Odisha. To date, the local tribal people make the wooden images of the deity. Deity मतलब मूर्तियां, जो ये विष्णु जी की मूर्तियां के लिए, तो वो लकड़ियों से जो है जो लोकल ट्राइबल पीपल थे, वहां के जो इनहैबिटेड थे, वो किससे मूर्तियां बनाते थे? लकड़ियों से बनाते थे, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu. पहले जो ये deity थे, कोई एक लोकल गॉड थे, पर बाद में उसको कहाँ किससे आइडेंटिफाई किया गया? उनको एज अ विष्णु आइडेंटिफाई किया गया था। In the 12th century, one of the most important rulers of the Ganga dynasty, Ganga dynasty मतलब गंगा डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? जब एक ही परिवार के लोग, ठीक है, एक के बाद एक राजा बनते रहते हैं, तो दैट इज नोन एज डायनेस्टी, ठीक है। तो गंगा डायनेस्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर अनंत वर्मन जो थे, he decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ at पुरी। What he decided कि हमें पुरुषोत्तम जो जगन्नाथ है, जो विष्णु जी हैं, उनके लिए एक टेम्पल बनाना चाहिए पुरी में। So he erected a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ at पुरी। Subsequently in 1230, King Anga-Bhima III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. और 1230 में किंग जो अनंग भीमा थर्ड थे, उन्होंने अपना पूरा किंगडम, अपना पूरा राज्य जो है विष्णु जी के नाम पे कर दिया, और उन्होंने बोला मैं भगवान का एक डेप्यूटी हूं, मतलब भगवान का एक मैसेंजर हूं।
So as the temple gained in importance as a center of pilgrimage आज बहुत ही important आपका pilgrimage है, तीर्थ यात्रा के लिए भी लोग जो है पुरी में जाते हैं, बहुत ही जो बोलते हैं ना एक पवित्र स्थान है, पवित्र बहुत ही प्योर प्लेस है ये आज के डेट में जगन्नाथ टेम्पल। और कैसे जगन्नाथ टेम्पल पहले लोकल जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल थे एक वुडन इमेज से बनाते थे और उनकी पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे एक जो राजा थे, जो गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने क्या किया, उनके लिए टेम्पल बनाया। उसके बाद जो है अंग भीमा ने पूरा एक राज्य जो है उनको अर्पित कर दिया। और जैसे जैसे धीरे धीरे टेम्पल की जो इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, तो ये एक बहुत ही पवित्र एक पिलग्रिमेज, एक बहुत ही पवित्र जो है जगह बन गई, स्थान बन गई। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज, और धीरे धीरे इसका सोशल और पॉलिटिकल मैटर भी इंक्रीज होने लग गया था। All those who conquered Odisha, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain control over the temple. So धीरे धीरे जैसे जैसे जो भी इस उड़ीसा को कॉन्क्वर कर रहे थे, कैप्चर कर रहे थे अपने अंदर, जैसे पहले मुगल्स ने किया, फिर मराठास ने किया, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो है उन्होंने भी इंडिया पे रूल किया, उड़ीसा को कॉन्क्वर किया। तो वो क्या कंट्रोल करना चाहते थे कि हम जो टेम्पल है उसका कंट्रोल हमारे हाथों में आ जाए। So they felt that this would make their rule acceptable to the local people, क्योंकि लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा मान्यता थी, लोग बहुत ज्यादा मानते हैं इवन इस टेम्पल को, और यहाँ की जो प्योरिटी है उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत डेडिकेटेड है कि अगर इस टेम्पल का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा तो लोग हमें इजीली क्या कर लेंगे, हमें एक्सेप्ट कर लेंगे इस वजह से। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस फिगर, दिस इज जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा पुरी में ये जगन्नाथ टेम्पल है, one of the pilgrimage, important pilgrimage of India. And now just look at this figure too, the icons of Balbhadra, Subhadra and Jagannath, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट उड़ीसा, पाम लीफ की एक मैन्युस्क्रिप्ट है हाथों से लिखी हुई, और वहां यहाँ पे बालभद्रा, सुभद्रा और जगन्नाथ जो है उनको बनाया गया है, एक पाम लीफ में उसको लिखा गया है उनके बारे में। So this is all about today class. So in our next class we will start with this topic, the Rajputs and the traditions of heroism. So till here, till page number 124, till here the local people go through the chapter, read the chapter very carefully, and if you face any problem do let me know. Thank you, bye bye.